یہ لاہور میں جنم لینے والا اسقاط حمل کا دوسرا انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعہ ہے، جس میں ایک غیر شادی شدہ حاملہ لڑکی کو اس کا بوائے فرینڈ اپنے گھر بلاتا ہے اور پھر اپنے دوستوں کی مدد سے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر ڈالتا ہے۔ لڑکی کی حالت بگڑ جاتی ہے تو اس کا بوائے فرینڈ اس کو اسپتال پھینک آتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کی میزبان تہمینہ شیخ۔ ناظرین، یہون آباد میں اس ٹائم موجود ہوں۔ رابعہ نامی لڑکی جس کی عمر 24-25 سال ہے، اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا۔ یہ ملزم کا گھر ہے، اجاز جس کا نام ہے۔ یہ پوری کی پوری فیملی منظر عام سے غائب ہے اور فرار ہے۔ اس کے ساتھ ہی جہاں پر ہم رابعہ کی بات کرتے ہیں تو یہ رابعہ کا گھر ہے، یعنی اجاز اور رابعہ کا گھر آمنے سامنے ہے۔ یہ رابعہ کا گھر ہے۔ اس پوری فیملی کا کیا کہنا ہے اپنی بچی رابعہ کے حوالے سے، اصل کہانی کیا ہے، یہ آپ کو دکھاتے ہیں، آئیے میرے ساتھ۔ امین صاحب بتائیے گا کہ رابعہ آپ کی بیٹی، اس کی عمر کتنی تھی؟ 27 سال۔ کیا ماجرا ہوا؟ ਬਾਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਤਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਸਿਆਤ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬੜੀ ਮਾਸੂਮ ਸੀ, انہوں نے سی سمجھے نے میرے نال کی کرنا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ رابعہ اور وہ لڑکا جو خبریں گردش کر رہی ہیں، اجاز اس کا نام ہے، رابعہ اور اجاز کی انڈرسٹینڈنگ دوستی کتنے عرصے سے تھی؟ یہ کوئی 2-3 سال سے 2-3 سال سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ دونوں کی جانب سے یہ رضامندی تھی کہ شادی کرنا چاہتے تھے؟ ہاں جی، دونوں کو رضامندی تھی اور میں بھی راضی تھا۔ تو کون راضی نہیں تھا؟ اس کی ماما اور پاپا۔ اجاز کی امی اور ابو نہیں چاہتے تھے کہ رابعہ سے شادی ہو۔ رابعہ گھر سے کب غائب ہوئی؟ جو خبریں ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ رابعہ دوائی لینے کے لیے گئی تھی۔ جی، وہ مجھے صبح ہی اٹھ کے نا، میں نے 9:30 بجے اٹھا تو مجھے کہہ رہی ہے کہ پاپا مجھے وہ نا سبزی لا دو۔ میں نے کہیں کام جانا۔ وہ چلی گئی 9:45 بجے۔ تو میرا بیٹا جیڑا نا 10 بجے کام پہ گیا، اس نے تالا مارا تو میں آیا ہوں 1-1:30 بجے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ رابعہ کدھر گئی، ابھی تک آئی کیوں نہیں ہو؟ تو کہہ رہی تھی میں آ جاؤں گی جلدی۔ کیا ٹائم تھا یہ؟ تقریباً 1:30 کا ٹائم تھا جب تو ہم گھر میں آئے تھے، سبزی لے کے میں گھر میں دے کے گیا ہوں۔ اس کے بعد ہم 8 بجے آئے ہیں تو مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ میں نے اس کو بولا بیٹے کو کہ جاؤ میرے لیے روٹی لے کے آؤ۔ میں نے روٹی کھائی اور 10 کے قریب میں نے اس کو بولا کہ یار اس کا پتہ کرو۔ رات کے 10 بج گئے ہیں، اس کا پتہ کرو کدھر چلی گئی، اس تو کہیں اتنی دیر لگاتی ہی نہیں ہے۔ تو اس نے اس کا فون کیا تو فون اس کا سوئچ آف۔ تو پھر تقریباً 10:30 کے قریب اس کے والد کا فون آیا ہے۔ اجاز کے والد کا کیا کہتا ہے؟ اجاز کے والد کا فون آیا تو فون میرا تھا نا جو، وہ میرے بیٹے کے پاس تھا۔ تو اس کو اس نے بولا کہ اجاز اور رابعہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، تو ہم بھی ادھر ہیں ملتان چنگی پہ، تو ہم بھی آ جاتے ہیں اور آپ بھی اور نواز سے آ جائیں، تو پھر ادھر اکٹھے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ ہم ادھر سے 10 سے 15 منٹ تک ادھر پہنچ گئے ہیں، اور جب ہم ادھر پہنچے ہیں تو فٹافٹ ہم ایمرجنسی میں گئے۔ تو ایمرجنسی میں تو ہم گئے ہی نہیں، تو باہر ہی رابعہ کی لاش ہمیں مل گئی جب ہم نے دیکھا اس کو۔ اچھا، جب آپ ہاسپٹل پہنچے تو رابعہ کی جو لاش ہے وہ کہاں پڑی تھی اور کس حالت میں تھی؟ کون کون وہاں پہ موجود تھا؟ وہ بس ایک لڑکا ہی تھا اس کے ساتھ، جو اجاز تھا، وہی کھڑا تھا، رو رہا تھا، پاپا جی، انکل جی، میں نے رابعہ کو مار دیا ہے، آپ مجھے بھی مار دو، میں نے اس کے ساتھ ہی جانا ہے، میں نے بہت ہی ظلم کیا ہے۔ تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا بیٹا میرے میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کو مار سکوں، آپ نے تو مار دیا ہے، چلو ہم اس کو لے چلتے ہیں گھر۔ ہم اس کو باڈی کو لے کے گھر آ گئے۔
आप और एजाज? हाँ नहीं, आज़ाद हमारे साथ नहीं आया, वो अपने अम्मी अबू के साथ चला गया। तो मेरे बड़े भाई ने वो कवर का भी आर्डर दे दिया, वो बॉक्स का भी आर्डर दे दिया। तो जब मेरी भाभी जान ने वो उसके कपड़े बदलने की कोशिश की तो मेरी भाभी रो पड़ी। उसने मुझे कहा ये कत्ल हुआ, ये जुल्म हुआ हमारे साथ। मैंने फिर भी भाभी को कहा, मैंने कहा नहीं रहने दो भाभी। उसने कहा नहीं, हमने नहीं छोड़ना, तू क्या हुआ, हम आपके साथ हैं। हमने जब इधर फिर बैठ के ये सब बातें सोची और फैसला किया, मैंने कहा कि मैं अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ रहा, मैं और बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ कि इन लोगों को जो जुल्म करते हैं इनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और माशरे को पता चले कि ये जुल्म करने वालों का क्या हशर होता है। तबीयत ख़राब से मुराद क्या है? कोई बुखार वगैरह था? जी उसको कुछ नहीं था, उसको सिर्फ खारिश की वो ना एलर्जी सी थोड़ी सी ना, वो उसकी दवाई लेती थी, वो टीका टूका लवा लेंदी सी, वो भी टीके तो डरती सी। वो तो ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ 1-2 ਟੀਕੇ ਉਹਨੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ मैं बयान नहीं कर सकता। पुलिस ताउन कर रही है आपके साथ? पुलिस हमारे साथ बहुत तामन कर रही है, बहुत अच्छा तामन कर रही है। FIR आपने कब कटवाई? पुलिस को कब बुलाया? पुलिस को फिर हमने सुबह, उसके बाद हम उधर थाने में गए हैं, फिर वो मौके पे आए हैं, देखा है, फिर और पुलिस आई, उन्होंने भी देखा। फिर उसी वक्त उसके बाप को और भाई को गिरफ़्तार उन्होंने कर लिया कि जब ये आपका जहाज़ आ जाएगा तो हम आपको छोड़ देंगे। तो फिर जब उसकी गिरफ़्तारी हो गई तो वो भाई को और उसके बाप को छोड़ दिया उसने। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, ये राबिया के वालिद साहब थे जो हमसे बात कर रहे थे। राबिया की ताई भी मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। वालिदा चूँकि है नहीं, बचपन में ही वालिदा का साथ जो है वो नहीं रहा, लेकिन ताई हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने राबिया को पाला है, बड़ा किया है, दिन और रात इसी घर में राबिया के साथ ही इनका टाइम गुजरता था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी राबिया के लिए? राबिया की डेड बॉडी जब घर लाई गई और ख़बरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि जब उसकी डेड बॉडी को कफन दफन और बाकी मामलात के लिए जब देखा गया तो उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के निशानात थे, क्या था? हमने ना बाहर निकाल कि चलो इसको नहलाने से पहले ना बाहर निकालना है तो इसके कपड़े चेक कर लेते हैं। वो जैसे मैंने उसके कपड़े उतारे हैं तो मैंने उसे देख के मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फ़ौरन फिर पहले मैंने अपनी बेटी को कहा, वो मेडिकल में है, होती भी वो लेबर रूम में है, मेरे को उससे ज़्यादा पता है। मैंने उसे कहा, मैं कहा देख ये क्या हुआ इसके साथ। वो देख, उसने देखा है, फिर वो और थी मेरी बड़ी नंद थी, देख के हम सब परेशान हो गए कि इसके साथ तो ज़्यादती हो गई है। हमें कुछ और बताया जा रहा है और जो इसकी कंडीशन है वो कुछ और है। तो एक उन्होंने, और मैंने कहा ये मेडिकल वाला कोई सीन मुझे नहीं नज़र आ रहा। कहते क्या मतलब है? मैं कहा देखे ये मेडिकल वाली क्या चीज़ है इसमें। हमें कह रहे हैं कि ये कुछ हुआ है। वो निशानात थे मारपीट के, नील थे? नील तो बाद में हमने देखे हैं क्योंकि उस वक्त कमरे में लाइट नहीं थी तो हमें नहीं पता चला कि नील हैं। तो बस वो उसके सारे कपड़े जो ना था वो ब्लड से भरे हुए थे, तो उसी के दुपट्टे को लेकर रोल करके ना तो बना के रख दिया गया था। वो जब मैंने वो भी देखा तो मैंने कहा ये मेडिकल वाली कोई चीज़ नहीं है। मेडिकल में ऐसे कुछ होता ही नहीं है कि बंदा कहे कि ये मेडिकल वाले ऐसे कर सकते हैं। फिर मैंने अपनी बेटी से कहा, उससे कहा, जो मेरे साथ थी वो दिखाया। तो इसको हम रात को भी कह रहे थे कि आप देखे कोई देख लेते हैं, कहते नहीं कुछ नहीं करना, बस इसको दफनाओ और मामला ख़त्म करो। लेकिन जब ये चीज़ें हमने देखी तो फिर तो हमसे रहा नहीं गया कि आज जिस बेटी के साथ ऐसे हुआ है कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। क्योंकि जब एक बंदे को ये पता चल जाता है कि मेरा कुछ नहीं किया गया तो दूसरा बंदा भी उठ खड़ा होता है कि कुछ भी नहीं हो सकता किसी के लिए। इससे फिर हमने सबने मिल के इस बात के लिए मशवरा किया। रात को तो हमें आके उसकी माएँ, बहन और हमारे गले लग लग के सारी बहनें रो रही थी। इजाज़ की बहनें, माएँ? जब डेड बॉडी यही साथ ही वो आ गई रो रो के कह रही थी कि मेरी मामा मान गई, उन्होंने आपके पास आना है 2 माह के बाद, रिश्ते के लिए आना था, तो मेरी मामा मान गई। अब मेरी मामा मान गई है। राबिया और इजाज़ बहुत प्यार करते थे आपस में।
तो हमें क्या पता था कि अंदर खाते इन्होंने क्या कुछ किया उस ये इजाज़ करता क्या था? पता नहीं, मैंने उसे काम करते तो नहीं ज़्यादा देखा, ज़्यादा घर में ही उसको देखा है। और घर के साथ ही आपके घर है, आना जाना रहता था घर में? हाँ, वो अक्सर आता जाता था, तो ज़्यादा तो मैं बाहर छत से हम ऊपर होते हैं तो वो ज़्यादा उसको उधर से ही देखा है। ठीक है। अच्छा, कोई मारपीट हाथापाई पहले भी करता था राबिया के साथ? हाँ, एक दिन मैंने आवाज़ें सुनी थी ज़रूर। मार रहा हाँ जी, मार रहा था उसको। उसने मुझे मारा है, तो मैंने उसको बोला कि तुम ऐसे लड़के से क्यों दोस्ती करती हो, इसको छोड़ दो, अगर तुम्हें मारता है तो बाद में क्या करेगा, सही है। रहने दो इसने मैंने उसको बोल दिया था कि इसने आपके साथ शादी नहीं करनी, ये मैं सच कह रहा हूँ। वही उसने किया, शादी नहीं की, उसको मार दिया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, जहाँ पर हम ख़बरों की बात करते हैं, जो ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, ख़बरों के मुताबिक ये है कि राबिया का अबॉर्शन करवाने के लिए इजाज़ उसको लेकर गया है। अबॉर्शन करवाने के बाद उसकी हालत बिगड़ी है और वही वजह उसकी डेथ की बनी है। तो उस हवाले से क्या आपके पास क्या हकीकत क्या है, वो बताएं। ऐसा मामला था, नहीं था, क्या था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमने नहीं देखा कि ऐसी कोई बात हो। अक्सर ऐसी कोई बात हो तो चाल बदल जाती है, बंदे की कंडीशन और हो जाती है, लेकिन उसका खाना पीना, उसका चलना, काम काज करना वैसे ही था। कोई ऐसी उसमें ऐसी बात नहीं थी कि बंदा कहे कि जी ऐसी कोई बात है। खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि वो इजाज़ के साथ चली गई, फिर इजाज़ अपने 3-4 और दोस्तों को ले आया, उसकी हालत बिगड़ गई। आपको क्या लगता है? हमें ये ऐसे ही लगता है कि ये गैंग रेप है। अच्छा, हाँ इस वजह से तबीयत ख़राब हुई है। हाँ, और उसको कुछ नहीं था, उसके साथ गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको मारा गया। तशद्दुद करके? हाँ जी। तशद्दुद के निशानात में क्या कुछ पाया आपने? उसके जो पाँव थी, सबसे पहले जब हमने फिर उसको बाहर निकाला ना, तो हमें अंदर कमरे में नहीं पता चल रहा था कि ब्लड उसके पाँव में, उसकी उंगलियों में और मट्टी थी साथ लगी हुई थी। अच्छा, उसकी पाँव की जो उंगलियाँ और ये नाखून थे ना, उनमें मट्टी थी, भरी हुई थी मट्टी, जैसे किसी ज़मीन पे वो रही है। अच्छा, ਦੀ ਹੋਈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੱਥਾਪਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੌੜਦੀ ਰਹੀ ਹੋਈ। अच्छा, उंगलियों में मट्टी थी, ब्लड था और डर था, ये था, और उसके ना जगह जगह पे ऐसे नील से बने हुए थे। यहाँ पर ऐसे था जैसे किसी ने ज़ोर से उसको पकड़ा, उसकी गर्दन पे निशान थे। जैसे किसी ने गला दबा के मारा है। और लग तो ऐसे ही रहा था। कोई निशानात थे गर्दन पे? हाँ जी, ऐसे ऐसे करके कुछ निशान थे, दबाया हुआ था, जैसे नील से पड़े हुए थे वो। उसके अलावा उसकी बॉडी के ऐसे करके जैसे खींचा गया, उसको नोचा गया, खींचा गया, ऐसे बने हुए थे निशान। जख्म भी थे? ज़ख़म नहीं थे, ऐसे करके बस बने हुए थे, निशान से बने हुए थे। ये चीज़ें जब हमने देखी हैं, तो जब क्राइम वाले आए ना, बाकी सारी चीज़ें हमने उस वक्त देखी, क्योंकि मैं और मेरी बेटी जो थी ना, वो हम दोनों साथ। क्राइम वाले जब आए फिर क्या हुआ? फिर ये सारा कुछ हमने देखा, हमने पूरी बॉडी तब नहीं चेक की, पहले तो कुछ चीज़ें हमने देख के बस हमने कहा कि ये इसके साथ ये जुल्म हो गया है, ठीक है। इसके साथ ज़्यादती। जब क्राइम वाले आए, फिर उन्होंने जब सब कुछ देखा, तो फिर ये सारा कुछ हमें पता चला कि उसकी कहाँ कहाँ बॉडी पे क्या क्या कुछ हुआ हुआ है। तो ज़ाहिर है कि फिर देखा तो नहीं जा रहा था, लेकिन हमने फिर इस सारी खुद को आप हिम्मत दी है। हमने कहा उसके साथ जो होना था वो हो गया, हम अब ये चाहते हैं कि आइंदा किसी और बेटी के साथ ये ना हो। और ये प्यार, मोहब्बत और पसंद की शादी के ख्वाब थे जो राबिया देख रही थी। हाँ जी, ज़ाहिर है उसे यही था कि मेरे साथ शादी करेगा। वो कमाती थी और मैंने बस उस लड़के को नहीं वैसे देखा था कभी कमा। आप लोगों ने पुलिस को किस टाइम बताया? जब हमने ये सब कुछ देख लिया ना, तब हम पुलिस के पास गए। अब आपका क्या मुतालिबा है? हमारा मुतालबा यही है कि हमें इंसाफ दिया जाए, उसे सज़ा मिलेगी तो और किसी को भी इबरत हासिल होगी कि हमने किसी और बेटी के साथ ऐसे नहीं करना। वो हमारी बेटी नहीं थी, बल्कि पूरी कौम की बेटी है। जहाज़ के लिए तो मैं यही कहूँगी कि जो सुनने में बार है कि जो हमें पहले पता नहीं था कि क्या हुआ है उसके साथ, पर अब जैसे जैसे पता लगता है कि ये हुआ है हमारी बहन के साथ, अब दिल करता है कि वो खड़ा हो तो बंदा उसको खुद ही मार दे हाथ से, कि इतना को गुस्सा आता है। अब शक्ल देखने को दिल नहीं उसकी करता कि हमारी बहन के साथ बहुत बुरा किया उसने, कि ऐसे नहीं था जाना उसने दुनिया से, अब इसका टाइम नहीं था जाने का। बहुत बुरा किया इन लोगों ने उसके साथ।
हम सोचते हैं पता नहीं वो कौन से आलम में होएगी उस टाइम, पता नहीं उसने किसको याद किया होगा, पता नहीं क्या उसके मुंह से निकला होगा, हमें याद करती होएगी, हमें बुलाती होएगी कि आ जाओ, ये मुझे पकड़ लो आके, मैं इस टाइम इस दुख में हूँ। बहुत बुरा किया इन लोगों ने उसके साथ। नाज़रीन, राबिया का एक भाई है, यानी ये बहनों का एक ही भाई है जिसका नाम है आमिर। आमिर से भी हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आमिर। आमिर, राबिया का जिस दिन मर्डर हुआ है, ये भी कहा जा रहा है अबॉर्शन की वजह से हालत बिगड़ी है। जहाँ पर तशद्दुद के निशानात की हम बात करते हैं तो तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। उस दिन राबिया से आपकी मुलाकात, बात हुई घर में? हाँ जी। वो क्या बात हुई थी? काम करने जा रही थी, बस यही बात हुई थी। कहती ड्यूटी पे जा रही हूँ। हाँ जी। जॉब करती थी, पर वो किसी के घर जा रही थी काम करने। पार्लर में काम करती है ना, तो वहाँ पे काम करने जा रही थी। घर पे यही बता गई है। एक ही भाई हो, 3 बहनों के। राबिया के साथ घुलना मिलना, प्यार मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, वो लड़ाई झगड़ा भी हमारे में होता ही रहता था, प्यार मोहब्बत भी आई थी। क्या कहोगे अब? यही कहूँगा कि वो इंसाफ मिलना ही चाहिए, सज़ा उनको मिलनी चाहिए जो जो लोग हैं। इजाज़ गली में घूमता फिरता होगा, यकीनन लड़के गली में बाहर घूमते फिरते हैं। इजाज़ की मोहल्ले में क्या रिप्यूट है? वो ज़्यादा घर ही रहता था, कम में निकलता था बारिश। हाँ जी, मतलब कि हमें ये नहीं था पता कि ये काम इसने कर देना है। एतबार था। हाँ जी, इतबार है था। पर अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, सज़ा मिलनी चाहिए जो जो लोग गए थे। आपको किसी पर शक है? शक, कोई इजाज़ के दोस्त, कोई मोहल्ले वाले? जब वहाँ से लाश निकाली थी तब वो जास का कज़न एक आया था, वो रजील। रजील? अच्छा। वो एक इसकी मामी है, उसका बेटा है। वो कैसे आ गया ये नहीं मुझे पता, वो उसी टाइम ही आ गया था। हाँ जी। डेड बॉडी के पास राबिया की? हाँ जी। आपको उस पर शक है? पुलिस को बताया आपने? नहीं नहीं, पुलिस को तो नहीं बताया। वैसे वो आया था और रात को मैं सोच रहा था कि वो कैसे आ गया। नहीं, आप फ़ौरन पुलिस को बताएं, आपको बताना चाहिए। ओके। नाज़रीन, सारी की सारी कहानी और माजरा आपके सामने है। मुलजिम को मंजर आम पर लाने के बाद मुलजिम का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाएंगे, जिसका नाम इजाज़ है, कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान मज़ीद क्या इंकशाफात सामने आते हैं। ये मर्डर कैसे हुआ, ये सारा माजरा क्या था, राबिया को ख़त्म किया गया, कत्ल किया गया, मारा गया, जुल्म किया गया, जबर किया गया, तशद्दुद किया गया, कौन कौन इस काम में मुलव्विस था, ये सारी कहानी आपको आगे भी बताएंगे। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।